Welcome back, everybody, to the third and the last part of the current affairs of the month of November. Today, we'll be finishing off with the November current affairs. And just to remind you guys, आज का वीडियो पोस्ट होने के बाद all the current affairs slides and notes will be provided to you on the Barracks Buddies Telegram channel, where you will also find very well curated notes covering everything that you need to know for all your subjects for your NDA, CDS, AFCAT, any other defense examinations that you're giving this year. And I would recommend that you go check them out as soon as possible. Okay, moving on to our first question. Which of the following books received the Booker Prize 2024? इसका आंसर है सी ऑर्बिटल. इसकी राइटर है समांथा हार्वी, हु इज़ अ ब्रिटिश ऑथर. एंड जो बुकर प्राइज होता है, इट इज़ अ लिटरेरी अवार्ड दैट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस इन द राइटिंग कम्युनिटी. The next question is, which department was established by US President Donald Trump and who heads it? इसका राइट आंसर है बी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. Elon Musk and Vivek Ramaswamy are heading this department. हमारा अगला क्वेश्चन है, OIC एंड अरब लीग का जॉइंट समिट 2024 में कौन से सिटी में हुआ था? ओके, इसका राइट आंसर है सी, रियाद. रियाद में हुआ था. OIC इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड अरब लीग, इन दोनों ने साथ में ये समिट को होल्ड किया था. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज़ अ समिट वेयर दैट हैज़ 57 मेंबर स्टेट्स एंड इसमें 47 मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं. आई थिंक दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो हियर. अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अमेजोन अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे. इसका राइट आंसर है बेंगलुरु. ये हमने बेंगलुरु में एस्टैब्लिश अमेजोन करने वाला है. नाउ इंजीनियर मेकर स्पेस क्या है? इंजीनियर मेकर स्पेस इज बेसिकली, मेकर स्पेस मीन्स ये लोगों को टूल्स एंड फैसिलिटीज देगा that is relevant obviously to engineering to help them upskill themselves in engineering. So these include like any tools and facilities that help them in their process of prototyping or building something or designing something. तो ये वो सब सबको प्रोवाइड करेगा. फॉर ये जो अमेजोन बिल्ड कर रहा है बेंगलुरु में, इट विल स्पेसिफिकली हैव यूटिलिटीज फॉर AI एंड 3D प्रिंटिंग. दैट इज इट्स फोकस. Okay. Next question. By how much has India's renewable energy capacity increased in the last year? इसका राइट आंसर है ए. 24 गीगावाट से 203 गीगावाट्स पे हम पहुंच गए हैं. Renewable energy, as the name suggests, is energy from sources that are renewable, जो diminish नहीं होते हैं, बार बार replenish होते जाते हैं, and it is sustainable in the long run. And इसके sources क्या है? Sunlight, wind and tides. These are some of your renewable energy sources. इंडिया में हमने आपको थोड़े sources दे रखे हैं, wind power, solar power, and there is a list of other renewable energy sources in India. Next question is, what significant step was approved by the Home Ministry for the CISF? इसका राइट आंसर है, इस साल CISF ने अपना पहला फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वुमेन बटालियन अप्रूव किया गया होम मिनिस्ट्री से. नाउ जस्ट टू रिवाइज सम थिंग्स, हमने यहाँ पे आपको important positions दे रखे हैं and who are currently occupying them. Supreme Commander of the Forces is obviously the President of India, who is currently President Draupadi Murmu. हमारे Minister of Defense is Mr. Rajnath Singh. Chief of Defense Staff is General Anil Chauhan. And Defense Secretary is Mr. Rajesh Kumar Singh. अगला question, which missile was successfully test fired by DRDO off the Odisha coast? Agni 5, BrahMos 2, LRLACM and Prithvi 3. इसका राइट आंसर है सी, LRLACM. अब LRLACM का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल. नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये लॉन्ग रेंज है. इसका रेंज इज ओवर 1000 किलोमीटर्स. लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है. एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO फॉर ऑल 3 of our forces, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी. तीनों के यूज़ के लिए इसको डेवलप किया गया है. ओके, नाउ वी हैव गिवन यू सम फीचर्स इस मिसाइल के बारे में, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू डेप्थ ऑफ इट, बट जितना रेलेवेंट था मैंने आपको बता दिया है.
अगला क्वेश्चन है, वेयर विल पीएम मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल? इसका राइट आंसर है सी, न्यू दिल्ली। तो ये जो फेस्टिवल है, इट इज़ अ कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल ऑफ द बोडो कम्युनिटी, एंड ये मोदी जी न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी बिकेम द फर्स्ट टू विन द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड? तो इसका राइट आंसर है बी, त्रिवुवनंतपुरम। त्रिवुवनंतपुरम इज इंडियाज फर्स्ट सिटी जिसको ये अवार्ड दिया गया है। ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी के लिए है ये, क्योंकि त्रिवुवनंतपुरम ने अर्बन डेवलपमेंट में दे हैव बिन शोइंग सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 6.0 का फोकस क्या है? इसका राइट आंसर है बी, नार्को क्रिमिनल क्रैकडाउन। नार्को, एज यू मस्ट हैव गेस्ड, इट्स रिलेटेड टू योर नारकोटिक्स। यहाँ पर जैसे लिखा है, दिल्ली पुलिस ने इसको ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को टैकल करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। एंड दैट इज ऑल यू नीड टू नो हियर। इट हैज़ बिन लॉन्च अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड हमने आगे आपको थोड़े से ऑपरेशन दे रखे हैं जो इंडिया में हुए हैं एंड वाई दे हैव बीन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल? इसका राइट आंसर है बी, मिस्टर अरविंदर सिंह हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल। अगला क्वेश्चन, ISRO has signed an MOU with which institution to set up a research center focused in fluid and thermal sciences? इसका राइट आंसर है हमारा सी, IIT मद्रास। इसरो ने IIT मद्रास के साथ they will collaborate and they'll set up this center which will focus on your studying your fluid and thermal sciences. अगला क्वेश्चन, Fortune inaugural list of 100 most powerful people was topped by who? Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai and Tim Cook. इसका राइट आंसर है बी, Elon Musk. You must know him. यहाँ पे लिखा है टेस्ला, SpaceX एंड न्यूरालिंक, तीनों ही इनके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है बी, SBI, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर है ए, SBI, HDFC एंड ICICI बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको ये टैग दिया है, एंड एज द नेम सजेस्ट इसका नेम का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो दैट इज वाई दे आर बीइंग कॉल्ड, यहाँ पे हमने लिखा है टू बिग टू फेल। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर इकोनॉमी, विच इज़ वाई ये जो बैंक्स अगर फेल हो गए तो हमारी इकोनॉमी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बहुत बड़े लेवल पे, एंड दैट इज़ ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ रीजंस। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर बिग, इतना बड़े साइज़ के हैं बैंक्स। दूसरा, उनका जो इंटरकनेक्टेडनेस है पूरे इकोनॉमी में, उनका हर जगह इफेक्ट है। प्लस उनके जो फंक्शंस है, इट इज द फंक्शंस दैट दीज बैंक्स आर प्लेइंग इन आवर इकोनॉमी आर वेरी क्रिटिकल फंक्शंस। तो इफ दीज बैंक्स फेल, इट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर आवर इकोनॉमी। तो इसलिए इनको ये टैग मिला है, विच मीन्स फ्यूचर में अब इनके जो थोड़े रेगुलेशंस है, जैसे इनका मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल और ये सब, वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे टू प्रिवेंट अ negative scenario in the future. Next question is, where was the Indian Coast Guard's regional level pollution response exercise conducted? इसका right answer है B, Paradeep में हुआ था ये। It is, this exercise was focused on your marine pollution and उसका response strategies. Next question, Know Your Medicine app launched by the Ministry of Youth Affairs and Sports aims to promote what? Healthy eating, clean sports and anti-doping awareness, mental health in athletes and sports medicine research. इसका right answer है B, clean sports and anti-doping awareness. Now I think you all know what doping is. Doping is a practice done in sports. It is basically when you take either substances like drugs or injections or hormone enhancers or any other methods that will improve your performance in your competition. And basically ये सब करने के बाद the competition is not fair. It is not a level playing field anymore if you've taken hormone enhancing injections या फिर anti-anxiety medication is also not allowed in your sporting events. तो इसका aim is to promote awareness about anti-doping and to stop doping. तो इसका slogan है rise above, play true, ditch the doping and shine through. Next question, Goa cricketers recently set a record in Ranji Trophy.
हिस्ट्री फॉर द हाईएस्ट पार्टनरशिप, हाउ मेनी रन्स डिड दे स्कोर? इसका राइट आंसर है बी, 606 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। रणजी ट्रॉफी एवरीबडी नोज इज हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट चैम्पियनशिप, हर साल होता है ये। एंड मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, मुंबई ने इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है। दे वन इट 42 times. Mumbai has won the Ranji Trophy 42 times and they're the leading winners in the Ranji Trophy. Next question, UNESCO ने how many coastal villages in Odisha को tsunami ready declare किया है? इसका right answer है UNESCO has declared 24 villages in Odisha as tsunami ready. It ensures better preparedness for coastal communities against natural disasters like tsunamis through effective disaster management practices. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने रिसेंटली 6.5 लाख सिटीजन्स का डिस्प्लेसमेंट एक्सपीरियंस किया था थ्रू अ सुपर टाइफून कॉल्ड मैनगी? इसका राइट आंसर है बी, फिलीपींस। ये सुपर टाइफून फिलीपींस ने एक्सपीरियंस किया था एंड इट हैज डिस्प्लेस्ड मोर देन 6.5 लाख सिटीजन्स। नाउ टाइफून्स फिलीपींस में फ्रीक्वेंटली क्यों आते हैं उसका भी रीजन दे रखा है। दैट इज बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक टाइफून बेल्ट। एंड उसके नीचे हमने आपको इंडिया में हुए 3 साइक्लोन्स दे रखे हैं, सीरियस साइक्लोन्स, एंड वो कहाँ कहाँ हुए थे, तो यू कैन रीड अपॉन दैट एज वेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी बिकेम द सेकंड फॉरेन डिग्निटरी टू बी ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नाइजीरियन अवार्ड्स? इसका राइट आंसर है ए, GCON। ये इसका फुल फॉर्म है नाइजीरियाज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, एंड PM मोदी was the second foreign dignitary to receive this award. Next question, for the first time which country has imported electricity from Nepal facilitated through India? Options are Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan. इसका right answer है बांग्लादेश, and facilitated through India means that ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जो नेपाल बांग्लादेश को देगा उसका जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी थ्रू इंडिया। इंडिया से ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी एंड देन इट विल गो टू बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बीइंग कंस्ट्रक्टेड? श्रीनगर, लेह लद्दाख, शिमला एंड मनाली। इसका राइट आंसर है बी, लेह लद्दाख। पैरा स्पोर्ट्स सेंटर इज अ स्पोर्ट्स सेंटर फॉर पैरा एथलीट्स। उनके ट्रेनिंग के लिए ये स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है लेह लद्दाख में। And I think having it at a higher altitude is also effective because higher altitudes पे oxygen कम होता है, तो आपका endurance training and everything else and physical conditioning is more effective. And if you're talking about para sports, let us also discuss, इस साल हुआ था हमारा Paralympics in Paris. It happened from 28th August to 8th of September. एंड इंडिया ने इसमें टोटल 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 7 वर गोल्ड, वी हैड 13 ब्रॉन्ज मेडल्स एंड वी हैड 9 सिल्वर मेडल्स। सो दिस वाज इंडियाज मेडल टैली इन द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे किस डेट पे ऑब्जर्व किया जाता है? इसका राइट आंसर है नवंबर 16 को हम नेशनल प्रेस डे मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्पोर्ट्स आइकन्स को ब्रांड एम्बेसडर्स डिक्लेयर किया गया है फॉर द दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल? इसका राइट आंसर है बी, मिस्टर हरभजन सिंह हु इज अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड मिस सानिया मिर्जा हु इज फ्रॉम ऑब्वियसली टेनिस। अगला क्वेश्चन है, 19 G20 समिट कहाँ होल्ड किया गया था? इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है बी, ब्राज़ील। G20 summit was held in Brazil. For your exam point of view, you need to know कौन सा edition था, which was 19th edition. कहाँ hold किया गया था उसका, it was held in Brazil. And इसका theme क्या था? And I'll tell you the theme. The theme was building a just world and sustainable planet. That was the theme of the G20 summit that was held in Brazil this year. अगला क्वेश्चन है, which company is set to launch India's GSAT-20 communication satellite?
इसरो, स्पेसएक्स, नासा एंड ब्लू ओरिजिन। इसका राइट आंसर है ये स्पेसएक्स लॉन्च करने वाला है हमारा सैटेलाइट। दिस इज बीइंग लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स बट इट वाज डेवलप्ड बाय इसरो। एंड ये सैटेलाइट बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हमारे ब्रॉडबैंड को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। ब्रॉडबैंड इज व्हाट सप्लाइज यू विथ योर इंटरनेट एंड एवरीथिंग। तो that is the point of this satellite. Our next question is, India recently tested its first long-range hypersonic missile off of the coast of which state? इसका राइट आंसर है बी, ओडिशा के कोस्ट पे हमने इसे टेस्ट किया है। I'll tell you a little bit about this missile. Long range because it can strike targets up to 1,500 kilometers. And hypersonic because its speed goes above the speed of sound. So it can go up to speeds of Mach 5, which is 5 times the speed of sound. So that is a little bit about this missile that was tested off the coast of Odisha. Now to our next question. इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बी, कैरेसुमेरा इज द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन दीज टू कंट्रीज। एंड हम इन दोनों कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। तो जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी वील गो ओवर सम ऑफ देम। तो पहला है हमारा गरुड़ शक्ति, which we do with the army of Indonesia. Then we have Samudra Shakti, which we obviously do with the navy of Indonesia. And ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, we have Ostra Hind. So these are few of our exercises with these two countries. Moving forward, Victoria Kerr, who recently won the Miss Universe title, is from which country? Which country did she represent? Sweden, Denmark, Norway and Finland. इसका right answer है Denmark. She is actually the first Danish woman who has won the Miss Universe title. हमारा अगला क्वेश्चन है, who has been appointed as the new Secretary General of Interpol? इसका राइट आंसर है सी, वेल्डेसी उर्क्विज़ा को इंटरपोल का नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। इंटरपोल इज़ ऑब्वियसली योर इंटरनेशनल क्राइम एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कंट्रीज़ के पुलिस फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करता है टू गेट इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट द एप्रीहेंशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल्स। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया एंड जापान रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट फॉर विच टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन द इंडियन नेवी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर है बी, यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी। यूनिकॉर्न स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो नेवी को कम्युनिकेशंस में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है बी, ऑपरेशन द्रोणागिरी। एंड दिस इज फोकसिंग ऑन लेवरेजिंग साइंटिफिक एडवांसमेंट्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घसीदास तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी which was recently given the title of India's 56th टाइगर रिजर्व is in which state? इसका राइट आंसर है बी, छत्तीसगढ़ में है ये। यहाँ पे इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द किंग कोबरा विच इज रिसेंटली रिकग्नाइज्ड? इसका राइट आंसर है हमारा ए, ओपियस कलिंगा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आर किंग कोबरा जो हमको, सॉरी यह मिस्टेक है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है एंड इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द स्टेट ऑफ ओडिशा। Our next question is, who has been appointed as the Comptroller and Auditor General CAG of India? इसका राइट आंसर है सी, मिस्टर के संजय मूर्ति has been appointed as the new CAG of India. CAG क्या है? It is an independent body जो बेसिकली हमारे स्टेट, सेंटर एंड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उनको ये लोग ऑडिट करते हैं। ऑडिट करना मतलब दे गो ओवर इट, वो लोग उनको स्क्रूटनाइज करते देखते हैं। तो दे आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक फाइनेंसेस। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मूविंग फॉरवर्ड, a global coalition to combat hunger and poverty was launched at which of the following summits? इसका आंसर है सी, G20 समिट, जो इस साल ब्राज़ील में हुआ था। वहाँ पे ये कोएलिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSG's 10th काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा was held in which city? इसका ऑप्शंस है मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। द राइट आंसर इज बी, गुरुग्राम. This was an exercise held in Gurugram to enhance their preparedness for terrorism threats. Next question is South Asia's largest maritime thought leadership summit, Sagar Manthan, was recently held where? इसका राइट आंसर है डी, न्यू दिल्ली में हुआ था ये। तो सागर मंथन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सागर मंथन इज बेसिकली all the countries come together and it is to promote your maritime trade and sustainable growth in the maritime sector and innovation in the maritime sector, जो हमने इंडिया में न्यू दिल्ली में होल्ड किया था इस साल। हमारा अगला क्वेश्चन इज ओडिशा रिसेंटली वन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन विच इवेंट इन द 14th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप? इसका राइट आंसर है ए, मेंस हॉकी में ओडिशा ने ये मेडल जीता था और ये उनका पहला गोल्ड मेडल था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल Indo-Nepal exercise that was held in December? Options are Surya Kiran, Mitra Shakti, Khanjar and Iron Fist. The right option is A, Surya Kiran. Surya Kiran is the only joint military exercise between the Indian and the Nepalese army. Now this was your 18th edition of the exercise and इसको किया गया था नेपाल में ही। तो all that is relevant for exam is कि ये 18th edition था and नेपाल में ही हुआ था इस साल। Okay, that was the last question for today and this marks the end of our November current affairs. अगले वीडियो में we'll be starting with the current affairs of December. And just to remind you guys that everything that we've discussed till now, all the current affairs slides and notes will be posted on the Barracks Buddy Telegram channel. So I recommend that you go check it out. वहाँ पे you'll also find very comprehensive subject-wise notes that cover everything that you need to know for your exam. So I would recommend that you go and check it out once. And I'll see you in the next video.